بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب میں خوش آمدید ویورز، آج پھر آپ کے لیے ایک اور سبق آموز سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل کہانی ہب سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ چلیں اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ ویورز، آج میں آپ کو اقصیٰ کی کہانی سناؤں گی۔ اقصیٰ بہت خوبصورت لڑکی تھی، لیکن کبھی کبھی خوبصورتی بھی بد نصیبی بن جاتی ہے۔ وہ میرے ساتھ آفس میں کام کرتی تھی۔ شروع میں سادہ سی تھی، رفتہ رفتہ اس سادگی میں نکھار آتا گیا۔ اس نے ایک متوسط گھرانے میں آنکھ کھولی۔ والد سرکاری ملازم تھے۔ انہوں نے جوں توں بچوں کی پرورش کی۔ جب اقصیٰ نے BA کیا تو والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ یہ 3 بہنیں تھیں اور ان کا کوئی بھائی نہیں تھا، لہٰذا کنبے کی تمام ذمہ داری اقصیٰ پر آ پڑی۔ کافی پریشانی کے دن تھے۔ چھوٹی بہنیں پڑھ رہی تھی۔ اس نے ملازمت کے لیے بھاگ دوڑ شروع کر دی۔ سال بھر کی کوشش اور تلاش کے بعد وہ ایک ایئر ہوسٹس بن گئی۔ تنخواہ اچھی تھی، گھر میں روپیہ آیا تو سکون ہو گیا۔ چھوٹی بہنوں نے پھر سے اسکول جانا شروع کر دیا۔ سہولت سے 2 وقت کی روٹی بھی میسر آنے لگی۔ ماں کو چھوٹی 2 بیٹیوں کی فکر تھی کہ کسی طرح سے وہ پڑھ لکھ جائیں۔ اس فکر میں وہ یہ بھول گئیں کہ ان کی بڑی بیٹی کے بھی کچھ ارمان ہیں۔ اقصیٰ جب بھی تھکی ہوئی ڈیوٹی سے گھر آتی، ماں چھوٹی بہنوں کے مسائل کھول کر بیٹھ جاتی۔ وہ یہ نہ سوچتی کہ یہ ملازمت کتنی کٹھن ہوتی ہے اور تھکی ہوئی اس بیٹی کو بھی ذہنی سکون اور آرام کی ضرورت ہوگی۔ اقصیٰ نے 6 سال مسلسل محنت کی۔ اس دوران جو پیسہ اکٹھا ہوا، اس سے ایک گھر بن سکا اور چھوٹی بہن شمائلہ کی شادی ہو گئی۔ اب تیسرے نمبر والی بہن کی باری تھی۔ وہ کالج میں پڑھ رہی تھی اور یہ کالج کو ایجوکیشن تھا۔ اس بہن کا نام ماریہ تھا اور یہ کافی خوبصورت تھی۔ جب کبھی میں اقصیٰ کے گھر جاتی، یہ لڑکی مجھے عموماً نہ ملتی۔ کالج سے کافی لیٹ گھر پہنچتی تھی۔ میں عموماً شام کو 6 بجے کے بعد آتی تھی۔ ایک بار میں نے دیکھا کہ کوئی لڑکا اس کو گیٹ پر چھوڑنے آیا ہے، تو میں نے پوچھا کہ ماریہ یہ کون ہے اور کس کی گاڑی سے تم اتری ہو؟ کہنے لگی میرا کلاس فیلو ہے اور ہمارے کالج میں فنکشن تھا، اس لیے میں اس کے ساتھ آئی ہوں۔ مجھے ماریہ پر شک تھا کیونکہ اس کی سج دھج دیکھنے والی ہوتی تھی۔ ایک دن میں اپنی فیملی کے ساتھ شہر کے ایک مہنگے ریسٹورنٹ میں گئی تو سامنے والی ٹیبل پر ماریہ کو دیکھا۔ وہ اسی لڑکے کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا کہ اس کی بہن بیچاری اس کے لیے محنت کر رہی ہے۔ اس نے شادی بھی اسی وجہ سے نہیں کی کہ چھوٹی بہنوں کی شادیاں ہو جائیں، اور اس بہن کو دیکھو کیا مزے سے زندگی سے لطف اندوز ہو رہی ہے۔ ایک دن اقصیٰ بہت اداس تھی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگی ماریہ کی فکر ہے، اس کی دوستی ایک غلط قسم کے لڑکے سے ہو گئی ہے۔ اب میں اس کو دانش سے ملنے سے روکتی ہوں تو میرے سامنے بولنے لگتی ہے۔ عائشہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں، تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ میں نے اس کے چہرے کو غصے سے دیکھتے ہوئے کہا، اقصیٰ تم کو اپنی بہنوں کی بڑی فکر ہے، کیا تم نے خود اپنے چہرے کو غور سے دیکھا ہے؟ ابھی تو تم خوبصورت ہو، لیکن آخر ایک ایسا دن آ جائے گا جب یہ نقوش عمر کی چغلی کھانے لگیں گے۔ اس وقت کوئی تمہارا ہاتھ تھامنے کو تیار نہ ہوگا، تب تم کیا کرو گی؟ جب دیکھی جائے گی۔ آخر کوئی تو اللہ کا بندہ ہوگا جو مجھ کو بیوی بنا لے گا، جو میرے مقدر میں لکھا ہوگا مجھے مل جائے گا۔ میں نے کہا، اور جو رشتہ اب تمہیں مل رہا ہے اس پر غور کیوں نہیں کرتی؟ وہ اچھے آدمی ہیں، خوبصورت اور سمارٹ ہیں، اچھا عہدہ ہے، اچھی تنخواہ ہے۔ آخر کیا کمی ہے مبشر صاحب میں؟ وہ ہمارے ادارے میں آفیسر تھے اور اقصیٰ کو دیوانگی کی حد تک پسند کرتے تھے، مگر اقصیٰ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ چھوٹی بہنوں اور ماں کی ذمہ داری کو آخر تک نبھانا چاہتی تھی۔ وہ کہتی تھی اگر میں شادی کر لوں تو ان تینوں افراد کا کیا ہوگا؟ وہ بھی شاید صحیح کہتی تھی۔ میں اکثر کہتی کہ شادی کے بعد بھی تم ان کو سپورٹ کر سکتی ہو، لیکن وہ کہتی کہ ایسا ممکن نہ رہے گا، جس سے شادی کروں گی اس کے بھی کچھ تحفظات ہوں گے۔ اگر اس نے کہہ دیا کہ نوکری چھوڑ دو یا اس کو میرا کنبے کو سپورٹ کرنا برا لگا تو؟ مگر یار مبشر صاحب ایسے نہیں ہیں۔ اس پر یہ بولی، ایک بیوی وہ پہلے چھوڑ چکے ہیں، کیوں یہ بھی تو سوچنا چاہیے۔ ارے بھائی تم تو بال کی کھال نکالتی ہو، کل کیا ہوگا کون جانے، آج تو زندگی کو سکھ سے جی لو۔ مجھے تو بس اس بات میں سکھ ملتا ہے کہ میری بہنوں کی تعلیم مکمل ہو جائے اور میں ان کا جہیز بنا لوں اور پھر ان کی شادیاں ہو جائیں۔ بڑی شمائلہ کی تو شادی میں نے کر دی ہے، اب مجھے ماریہ کی فکر ہے۔ ہم کولیگز کی باتوں کا اس پر ذرا بھی اثر نہ ہوتا تھا۔ وہ وہی کرتی تھی جو وہ ٹھیک سمجھتی تھی، اور وہ ٹھیک یہ سمجھتی تھی کہ مزید 5 سال اور بہنوں کے لیے وہ کماتی رہے گی، ان کی تعلیم دلوائے گی، ان کا جہیز بنائے گی، پھر ان کی شادیاں کرے گی، اور مزید 5 سال کا مطلب تھا کہ وہ 48 سال کی ہو جائے
भला इस उम्र में कौन किसी लड़की का हाथ पकड़ता है और इसके साथ शादी करता है। वक्त गुजरता गया, मेरी शादी हो गई। शादी के 1 साल बाद मुझे सर्विस छोड़नी पड़ी क्योंकि शोहर को मेरा घर से रात को बाहर रहना पसंद न था। हालांकि शादी से पहले इन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हारी मर्जी है, मुलाजमत करो या छोड़ दो, मैं तुमको मजबूर नहीं करूँगा। लेकिन जब मेरी फ़्लाइट होती, जाहिर है रात की ड्यूटी भी होती थी, तब मेरी सास मुझे कहती कि अगर तुम इस तरह शोहर को छोड़ कर रात को ड्यूटी करोगी तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी। इन्होंने मेरे दिल में कुछ ऐसा खौफ पैदा कर दिया कि मैंने आखिरकार नौकरी छोड़ दी। तब ही मुझे अक्सा की वो बात याद आई कि दोस्त पता नहीं शादी के बाद वो मुझे नौकरी करने देंगे या नहीं, तब मैं अपने कुंबे की कफालत कैसे कर पाऊंगी। अक्सा अब बहुत परेशान रहने लगी थी। मारे बांधे से मारिया ने बीए कर लिया, मगर वो घर से गायब रहने लगी थी। अक्सर वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती थी। माँ रोकती या बहन मना करती तो साफ साफ कहती कि ये मेरी ज़िंदगी है, मेरी मर्जी है कि मैं कैसे जीऊँ। अक्सा मारिया के लिए बहुत परेशान थी। एक दिन घबरा कर मुझे फ़ोन किया कि ये लड़की किसी तौर पर काबू नहीं आ रही, मैं क्या करूँ, इसकी शादी कर दो। मैंने मशवरा दिया कि खस कम जहाँ पाक, वो लड़का ठीक नहीं है यार, क्या तुमको नहीं पता। मैंने मालूम करवाया है इसके गलत किस्म के दोस्तों से राब्ते हैं और वो मारिया के पैसे पर ऐश करता है। तुम क्या जानो, हर वक्त अम्मी से बस पैसे मांगती रहती है। इस तरह तो जहेज़ बनने से रहा और फिर अब तो हद हो गई, रात रात भर गायब रहने लगी है घर से। मैं अपनी ड्यूटी पर होती हूँ, अम्मी बेचारी तमाम रात जाग जाग कर इसकी राह तकती रहती हैं। वो तो इस टेंशन से बीमार पड़ गई हैं। मैंने इसको मशवरा दिया, अरे भाई इसी लड़के से करवा दो इसकी शादी, तुम कब तक इसको रोकती रहोगी, वो कोर्ट मैरिज कर लेगी। लेकिन अक्सा इस बात पर रजामंद न थी। आखिरकार मारिया ना मानी। अक्सा ने इस लड़के को धमकियां भी दिलवाईं, पुलिस से झाड़ पड़वाई, मगर किसी बात का असर ना हुआ। जितना इसको रोकते वो और शेर हो जाता था। असल बात ये थी कि इसको मारिया की शय थी। वो अक्सा को कहती थी, तुम भी ड्यूटी के बहाने घर से बाहर रहती हो तो फिर मुझको क्यों कहती हो, पहले अपने गिरेबान में तो झांको। थक हार कर अक्सा ने हार मान ली। माँ से कहा, अम्मी जान अब ये बर्दाश्त नहीं होता मुझसे कि मोहल्ले वाले हम पर उंगलियां उठाएं। मारिया रातों को बाहर जाए, किसी दिन वो लोग हमको मोहल्ले से निकाल देंगे। अच्छा है आप इसकी शादी दानिश से करवा दें, फिर हम इससे कोई ताल्लुक़ ना रखेंगे। अक्सा हार गई थी। इसने मारिया की शादी दानिश से करवा दी। वो बेगैरत कहता था कि जहेज़ भी दो और इतनी रकम भी दो कि तुम एयर होस्टेस हो, इतना कमाती हो, रातों को ड्यूटी करती हो। शादी के कुछ अरसे बाद भी वो मारिया के साथ अक्सा के घर रहा। आखिर अक्सा ने कह कर इनको जाने पर मजबूर कर दिया कि अब तुम लोगों की शादी हो गई है, अपने घर जाकर रहो, यहाँ क्यों रह रहे हो। दानिश बीवी को ले गया, किराए पर मकान लेकर दिया और वहाँ ये रहने लगे। अब मारिया को पता चला कि दानिश के क्या करतूत हैं और पैसा कैसे कमाता है। सब गलत किस्म के धंधे थे। इसके तमाम दोस्त चोर और डकैत थे। ये डकैती डालकर लोगों को लूटते और इस पैसे पर ऐश करते थे। मारिया बुरी तरह फंस चुकी थी, मगर अब भागकर वो कहाँ जा सकती थी। तलाक लेती तब भी दानिश इसको जिंदा ना छोड़ता। इसका ताल्लुक ऐसे घरों से था कि वो डकैती करते वक्त बंदों को जान से मारने में ज़रा भी नहीं हिचकिचाते थे। जब काफ़ी दिनों तक कहीं से रकम हाथ ना आती थी तो दानिश ने मारिया से कहा कि जाकर अपनी बहन से रुपया लाओ, घर में तंगदस्ती है, तुम्हारी बहन हज़ारों कमा रही है, किस काम का है इसका रुपया। मारिया माँ के घर आई, माँ के सामने रोना रोया। माँ ने कहा, इसी वजह से हम मना करते थे कि इससे शादी मत करो, अब आया समझ में, तुम रोज़ रुपए लेने आ जाती हो, आखिर कब तक तुमको और तुम्हारे शोहर को हम शराब और कबाब के लिए अक्सा की खून पसीने की कमाई देंगे। मारिया रोने लगी कि अम्मा पैसे नहीं लेकर जाऊंगी तो वो मारेगा, कहता है तेरी बहन ने तो बहुत सोना और दौलत जमा कर रखा है, वो किस लिए ये सब जमा कर रही है, ये हमारे ही तो काम आएंगे। माँ मजबूर होकर इसको रुपए दे देती, लेकिन इस बार अक्सा ने सख्ती से मना कर दिया था कि अब रकम नहीं मिलेगी, इससे कहो खुद कमाए, मेरी बूढ़ी माँ है, मैंने इसके लिए भी कुछ रखना है। जब रुपए ना मिले मारिया ने जाकर शोहर को बताया कि अब आप भी एक थैला देने को तैयार नहीं, तुम इनको बहुत लूट चुके हो। कहने लगा, मैं खुद जाऊंगा, देखूंगा कैसे नहीं देगी। इस रोज़ अक्सा का ऑफ था। वो 2 दिन की लंबी फ़्लाइट करके थकी हुई आई थी, लिहाजा लिबास तब्दील करके और नहा धोकर वो सो गई। जाने किस वक्त और किस तरह बैरूनी दरवाजे को चाबी से खोला गया। ये चाबी दानिश ने तब ही डुप्लीकेट बनवा ली थी जब वो यहाँ रहता था। इस रोज़ अक्सा की अम्मी अपनी छोटी बेटी शुमाइला के पास रहने को गई हुई थी। मुलाजिम ने छुट्टी कर ली थी और अक्सा घर में अकेली थी।
इसलिए वो घर को लॉक कर सो गई थी। दानिश ने चाबी से दरवाज़ा खोला और अंदर आ गया। इसके साथ 4 और अफराद भी थे। इन सब ने मुंह कपड़े से लपेटे हुए थे। दानिश नीचे ठहर गया और ये लोग घर का कीमती सामान, नकदी और रुपया लेने अक्सा के बेडरूम में पहुंच गए। वो चीख मार कर उठी। तब इन डाकुओं ने खंजर इसकी गर्दन पर रखकर इसको खामोश हो जाने की तलकीन की और कहा, जो कुछ तुम्हारे पास है सारा माल इधर रख दो, वरना जान से मार देंगे। अक्सा ने सब कुछ बता दिया कि फलां फलां जगह पर चाबियां रखी हैं और रुपया, पैसा, नकदी जो घर में था सब हवाले कर दिया। इन्होंने इसकी कीमती अशिया, जेवर के अलावा मोबाइल फ़ोन तक उठा लिए। और जब वो घर से जाने लगे तब अक्सा ने हिम्मत करके अपने ऊपर के कमरे से नीचे हॉल में झांका जहाँ ये डकैत खड़े थे। अचानक इसकी नज़र दानिश पर पड़ी और वो हक्का बक्का रह गई। तब ही दानिश दौड़ा और अपने साथियों को पीछे आने का इशारा किया। वो सीधा अक्सा की तरफ पहुंचा और इसको कब्जे में कर लिया। फिर घसीटता हुआ इसके बेडरूम में ले आया। कहने लगा, अगर तुम ऊपर से ना झांकती तो मैं कभी तुमको ख़त्म ना करता। भला सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को कौन मारता है? मगर तुमने बड़ी गलती की है कि तुमने मुझको देख लिया है। अब तुम गवाही दोगी तुम्हारे घर किसने डाका डाला है। अब तो तुमको ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। बस इसने अक्सा को अपने बाकी साथियों के साथ खंजर मार कर कत्ल कर दिया और इसके कमरे को बंद करके नकदी, जेवर और कीमती अशिया लेकर भाग गए। जब सुबह दूध वाला आया, इसने देखा कि घर से खून की एक लकीर बाहर आ रही है। वो चौंक गया और इसने मोहल्ले वालों को बताया, जिन्होंने पुलिस को इत्तला कर दी। पुलिस आ गई और वो लोग अंदर आ गए। खंजर मारने की वजह से अक्सा के जिस्म का सारा खून निकलकर फर्श पर बह गया था। पुलिस ने कत्ल की तफ्तीश शुरू कर दी। चंद दिनों में ही वो लड़के गिरफ्तार हो गए जिन्होंने वारदात में दानिश का साथ दिया था और वो मोबाइल की वजह से पकड़े गए थे, क्योंकि जाते जाते वो अक्सा के मोबाइल फ़ोन भी साथ ले गए थे। इनको पुलिस ने पकड़ा और अपने तरीके से तफ्तीश की तो इन्होंने बता दिया कि दानिश इनके साथ था। इसने बैरूनी दरवाज़ा खोला और अपनी साली के घर डकैती करवाई। इसका अक्सा को मारने का कोई इरादा ना था। फिर जब अक्सा ने इसको देख लिया तो इसने शहादत ख़त्म करने के लिए साली को मार डाला। मारने में हम 4 अफराद थे और हमने इसकी मदद की थी। आजकल ये सब हवालात में है, मुकदमा चल रहा है, कातिल तो पकड़े गए, मगर जाने कब मुकदमे का फैसला हो। जो भी हो, मगर बेचारी अक्सा तो जान से चली गई। इसके कत्ल हो जाने का हम सबको बहुत ज़्यादा दुख और अफसोस है। दुख इसलिए ज़्यादा है कि वो एक अच्छी लड़की थी और अपने कुंबे की वाहिद कफील थी। जाने कब से दुख उठाकर अपनी बहनों को पाल रही थी और इसी बहन की वजह से वो कत्ल हुई, जिससे वो बेहद प्यार करती थी। मना करती थी कि दानिश से शादी मत करो, ये गलत आदमी है, मगर मारिया की आंखों पर तो इश्क की पट्टी बंधी हुई थी। वो कैसे मानती? आज शायद मारिया भी पछताती है, मगर अब क्या हासिल जब अक्सा जैसी हीरा लड़की खो गई। अब मारिया को इसकी जगह मुलाजमत मिल गई है। वो माँ की कफालत की खातिर अपनी बड़ी बहन की तरह कठिन राहों की मुसाफिर हो गई है। खुदा ऐसी मजबूरियाँ किसी को ना दे। औरत तो घर बसाने के लिए बनाई गई है, मगर कभी कभी दूसरों की खातिर घर की जन्नत को छोड़कर कठिन मुलाजमतों में ज़िंदगी को खर्च करना पड़ जाता है। मेरी दुआ है खुदा अक्सा को जन्नत में जगह दे और इसके कातिल को कैफिर किरदार तक पहुँचाए। आमीन। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अगली कहानी तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।